Tekfur Zenon. Çarkutay. Çarkutay. Benim Çarkutay! Benim Çarkutay! Benim Çarkutay! Çarkutay! Benim Çarkutay! Benim Çarkutay! Orhan! 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 Ola Fıra! Allahu Ekber.
Tekfur Zenon. Osman Bey. Osman Bey. السلام علیکم دوستو، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں پر سوار عثمان صاحب اور ان کے ساتھی جیر کوتائی کو بچانے کے لیے لیفکے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ادھر کونیا محل میں گونچا کہتی ہے میرے بابا خوش ہوں گے جب وہ سنیں گے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کبوتر کے ساتھ خبر باندھ کر اسے اڑا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک آواز گونجتی ہے اور پوری فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ سلطان مسعود دنیا سے انتقال کر گئے اور آخرت کی طرف چل پڑے ہیں۔ سلطان مسعود کی موت کے ساتھ ہی تقریباً سلجوق ریاست کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اب ایک نئی سلطنت کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک مقام پر اناتولیا کے تمام سرداران جمع ہوتے ہیں۔ اسی لمحے یعقوب بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود سپاہی بآواز بلند کہتا ہے دستور، ترکمانوں کے سردار، مظلوموں کے محافظ، ظالموں کے قاتل، انصاف قائم کرنے والے، اناتولیا کے سلطان، جرمیان قبیلے کے سردار یعقوب بے۔ سردار یعقوب نام کے ساتھ سلطان کے لفظ کا سن کر ایک ہڑبڑی سی مچ جاتی ہے اور وہاں موجود ایک سردار دوسرے سردار سے پوچھتا ہے سلطان اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سردار کارا سے کہتے ہیں اب ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے ساتھ سردار یعقوب سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور دوسری جانب سے گونچا بھی مقصد میں کامیابی کے بعد واپس لوٹ رہی ہوتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ادھر یعقوب بے سرداران سے کہتے ہیں آپ متجسس ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو ایک سردار کہتا ہے ہم ہیں یعقوب بے، لیکن ہمیں واقعی اس سے حیرت ہے جو آپ کے سپاہی نے کہا۔ تو سردار یعقوب کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر برائی میں اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ مجھے سلطان مسعود سے خبر ملی، وہ موت کے دروازے پر ہیں۔ کونیا میں ریاست کا سورج غروب ہو رہا ہے، ہمارا ملک ایک اندھیری رات میں ڈوبنے والا ہے۔ یہ سن کر سب سرداران بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک سردار کہتا ہے ارے نہیں تو دشمن خوش ہوں گے؟ ہاں یعقوب بے؟ تو سردار یعقوب کہتے ہیں نہ دشمن خوش ہوگا نہ ہماری ریاست کا سورج غروب ہوگا سرداران، اس لیے ہم یہاں ہیں۔ جبکہ کونیا منگولوں کے ہاتھ میں ہے تو ترکوں کا سلطان اناتولیا کے سرداران میں سے ہوگا۔ یہ سن کر کارا بے پوچھتا ہے کون قیادت سنبھالے گا؟ جواباً یعقوب بے کہتے ہیں جو کچھ آپ نے ایک لمحے پہلے سنا وہ بالکل بیکار نہیں تھا۔ میں ریاست کی قیادت کرنا چاہتا ہوں، ان زمینوں کو حاکم ملے گا۔ اب میں تم ترکمان بیٹوں سے پوچھتا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں اور سردار یعقوب مزید کہتے ہیں جب میں یہ خطرناک کردار ادا کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتے تو کارا سردار کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد باری باری سب سرداران یہی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یعقوب بے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی لمحے خبر ملنے پر سپاہی یعقوب بے سے کہتا ہے قاصد راستے میں ہے جناب۔ یہ سن کر یعقوب بے خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں چلو پھر ہم بھی نکلیں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے سرداران سے کہتے ہیں مہر وہاں ہے، فرمان اپنے راستے پر ہے، جب فرمان یہاں آ جائے گا تمام سرداران اس وقت میرے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ یقیناً یعقوب صاحب یہاں پہ عثمان صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ لیفکے قلعے کے باہر پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی بازطین سپاہی ان پر تیر تان لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اپنے تکفور سے کہو کائی کے سردار، تمام ترکمانوں کے محافظ عثمان صاحب آئے ہیں۔ یہ سن کر بلندی پر موجود سپاہی چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر کہتا ہے اگر تم قیدی چاہتے ہو تو اپنی تلواریں، گھوڑے اور کمانیں وہیں چھوڑ دو۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنی تلواریں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے برہان
बुरहान से कहते हैं, बुरहान तलवारें और कमाने छोड़ दो। इसके साथ ही वो सब कमाने उतार देते हैं और घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। बुलंदी पर मौजूद बाज़दीनी सिपाही हुक्म देता है कि दरवाजे खोल दो। इसके साथ ही किले का दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अपने सिपाही के साथ किले में दाखिल होते हैं, मगर हम देखते हैं कि इन सब के पास तलवारें मौजूद होती हैं। बाज़दीनी सिपाही चुकने होकर इनके पास जमा हो जाते हैं। देखते ही देखते किले का गवर्नर बलाई मंजर से सामने आता है। गवर्नर को देखकर उस्मान साहब उसे पुकारते हैं, तैकफूर ज़ैरोन। ये सुनकर तैकफूर कहता है, इस दौरे की वजह क्या है उस्मान बे? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरा बहादुर सिपाही जेर कुताई तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ। अब मुझे बगैर किसी परेशानी के जेर कुताई दे दो। सिपाहियों, सोना ले आओ। इसके साथ ही सिपाही सोने से भरे संदूक सामने रख देते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, ये वो सोना है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम खून रेजी नहीं चाहते, मुझे जेर कुताई दे दो। ये सुनकर गवर्नर कहता है, कैदी को ले आओ। गवर्नर का हुक्म मिलते साथ ही पिंजरे में कैद जेर कुताई को वहाँ लाया जाता है और वो बिल्कुल नढाल पिंजरे में बांधा होता है। जेर कुताई को इस हालत में देखकर उस्मान साहब और उनके साथी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो सब भागे भागे पिंजरे के पास जाते हैं। उस्मान साहब जेर कुताई को पकड़कर बार बार पुकारते हैं और फिर उसकी चलती हुई सांसें महसूस करके कहते हैं, ये जिंदा है, ये जिंदा है। इस पर बुरहान अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उस्मान साहब जेर कुताई से कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके साथ ही तैमूस आजिदगी से पीछे हटना शुरू हो जाता है और गवर्नर कहता है, इतना काफी है, तुम्हारा आदमी भी यहीं रहेगा और तुम सब भी मरोगे। चलो सिपाहियों। इसके साथ ही बाज़दीनी सिपाही उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और उनके सिपाही जेर कुताई के गिर्द हिसार बना लेते हैं, मगर बाज़दीनी सिपाही बड़ी महारत के साथ पिंजरे को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तैमूस को दूसरी जानिब देखकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, कमीने तुम। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होलोफेरा वैश्यों के पड़ाव में बंदी होती है और वैश्यों का सरबराह उससे कहता है, क्या हुआ? तो सरदार का बेटा तुम्हें लेने नहीं आया? ये सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं तुम्हें और सरदार के बेटे को तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। तुम लालची हैवान हो, इसी सोने में दफन होगे जिसके तुम लोग ख्वाहिशमंद हो। ये सुनकर दूसरा वैशी कहता है, हातून को गुस्सा आ रहा है भाई। इसी लम्हे ओरहान सिपाही के साथ वहां पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद वैश्यों के पास आता है। तो होलोफेरा कहती है, ओरहान क्या तुम्हारे घोड़े की टांगे कमजोर हैं? इतनी जल्दी आ गए। इसके साथ ही ओरहान के इशारे पर अली सोने से भरा संदूक वैश्यों के सामने रख देता है और ओरहान कहता है, मुख्तसर बात को लंबा ना करो, सोना यहाँ है, हातून मेरे हवाले कर दो। इस पर होलोफेरा कहती है, वो क्या कह रहा है? वो हातून चाहता है जैसे मेरे कारवां पर हमला करने वाला वो नहीं है। फिर ओरहान से कहती है, तुम हमला आवर हो। इसके बाद वैशी ओरहान से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हातून के बदले हम इतना सा सोना लेंगे? ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुम कौन होते हो किसी को कुछ देने वाले? मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम सब से इसका हिसाब लूंगी। इसके साथ ही वैशी का साथी लात मारकर संदूक बंद कर देता है और कहता है, तुम यहाँ बेमकसद आए हो, तुमसे पहले किसी और ने हातून को खरीद लिया है। इस पर ओरहान गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? हातून मेरी है, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। इसी लम्हे पीछे से आने वाला महमद बे बुलंद आवाज से कहता है, ओरहान बे मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं कुछ कहने से पहले ही खरीद लेता हूँ, ये हातून अब मेरी है। ये सुनकर ओरहान गुस्से से लाल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर लेफ्के में उस्मान साहब गुस्से में तैमूस की जानिब देखते हुए कहते हैं, तो तुमने भी हमें धोखा दिया। हाँ। इसके साथ ही बाज़दीनी सिपाही मजीद तीर उन पर बरसाने लगते हैं। शिकंजा मजीद तंग होता हुआ देखकर उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, सिपाहियों हमला करो। उस्मान साहब के ये कहते साथ ही उनके सिपाही बाज़दीनियों पर टूट पड़ते हैं और लेफ्के किले का सहन मैदान जंग बन जाता है। उस्मान साहब और उनके सिपाही बिल्कुल बेखौफ लड़ते हैं और पहले हमले में ही उस्मान साहब कई बाज़दीनियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। बहुत ज्यादा तादाद होने की वजह से बाज़दीनी सिपाही उन्हें फिर से काबू करने लगते हैं। लगातार तीर बरसने की वजह से कई सिपाही तीरों की जद में आ जाते हैं और बाज़दीनी सिपाही इन्हें काबू कर लेते हैं। तनहा उस्मान साहब काफी देर तक मुकाबला करते रहते हैं, मगर जैसे ही एक बाज़दीनी सिपाही को गिराकर तलवार उसके पेट में घूमते हैं, अगले ही लम्हे बाज़दीनी सिपाहियों के बहुत सारे नेज़े उस्मान साहब के गले पर होते हैं। ये मंजर देखकर गवर्नर कहता है, अपनी तलवार फेंक दो और हथियार डाल दो उस्मान, वरना
वरना मैं तुम्हारे सिपाहियों के सर कलम काट दूंगा। ये सुनकर उस्मान साहब अपने दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, हम में से यहाँ पे कोई भी मरने से नहीं डरता, चलो तकफूर चलो। इसके साथ ही गवर्नर बलाई मंजिल से नीचे आ जाता है और कहता है, उस्मान तुमने हमारे किलों पर हमला किया, हमारे दरमियान जासूस छोड़े, हमें तुमने कम समझा। हाँ उस्मान, लेकिन देखो तुम हार गए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये वक्त बताएगा कि कौन हारा कौन जीता। हमें तुम क्यों जिंदा रख रहे हो? हाँ क्यों? इसी लम्हे बाज़दीनी सिपाही गवर्नर के कान में आकर कुछ कहता है तो गवर्नर उस्मान साहब से कहता है, वो आ रहे हैं। इसके साथ ही किले का दरवाजा खुलता है और यकूब बे बाकी सरदारान के साथ किले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर गवर्नर कहता है, ये सरदारान आपको बचाने आए हैं, आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए उस्मान, अगर ये ना आते तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते थे। सरदारान को देखकर उस्मान साहब हैरानो परेशान हो जाते हैं और गवर्नर के हुक्म पर उसके सिपाही उस्मान साहब के इर्द गिर्द से नेज़े उठा लेते हैं, जबकि बाकी बाज़दीनी सिपाही भी उस्मान साहब के साथियों को छोड़ देते हैं। फिर यकूब बे कहते हैं, लेफ्के के हुक्मरान तैकफूर ज़रोन, मैंने आप पर एतमाद किया और आपने उसे जिंदा छोड़ दिया। तो गवर्नर कहता है, दरमियान के बेटे यकूब बे, अगर आपने कोई कासद न भेजा होता तो उस्मान मर गया होता। इस पर सरदार यकूब कहते हैं, खामोश, हिम्मत भी मत करना तैकफूर, उस्मान बे मेरे सबसे कीमती सरदारों में से एक हैं, अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम रुक गए क्योंकि तुम जानते थे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हम में से चाहे एक को भी नुकसान पहुंचे, हम सब महसूस करते हैं तैकफूर। ये कहते साथ ही यकूब बे घोड़े से उतरकर उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब सलामत रहें, अब आप कैदी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदीद। मेरे पास एक बुरी खबर आई है, सुल्तान मसूद दुनिया फानी से रुखसत हो गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को बहुत दुख होता है और उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह ताला उनकी रूह को सलामत रखे, आपका शुक्रिया, आपने इन्हें हमारी किस्मत का फैसला नहीं करने दिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जीते रहे, मैं आपका मकरूज हूँ। ये सुनकर यकूब बे कहते हैं, मैं आपको कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा उस्मान बे। सीन शिफ्ट होता है, इधर बाज़दीनी कमांडर अपने साथियों के साथ लेफ्के किले की जानिब देखते हुए कहता है, एक दूसरे पर हमला करने से पहले तुम्हारी तलवारें म्यानों में वापस नहीं आएंगी, अब ये शुरू हो चुका है। इधर सरदार यकूब कहते हैं, मैं अनातोलिया के तमाम सरदारानों का सुल्तान हूँ, तमाम सरदारान ने मेरी बैत की है। ये सुनकर उस्मान साहब हैरानगी से सरदारान की जानिब देखते हैं और सरदार यकूब कहते हैं, उस्मान साहब अब आपकी बारी है। फिर बैत के लिए अपना हाथ उस्मान साहब की जानिब बढ़ा देते हैं और मजीद कहते हैं, अपनी वफादारी का इजहार करें और मेरा हाथ चूमे उस्मान बे। मगर उस्मान साहब शदीद गुस्से में तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, जो हक पर है हम उसके साथ चलेंगे, हम लोगों के पीछे नहीं चलते। ये कहते साथ ही वो दोनों शदीद गुस्से में एक दूसरे की जानिब देखते हैं और सरदार यकूब का हाथ हवा में ही रह जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान के वॉल्यूम 131 के ट्रेलर 2 के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी से क्लिक कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के आगाज में हमें कूनिया का महल दिखाया जाता है। उस्मान साहब की आवाज गूंजती है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है, तीर कमान से निकल चुका है। इसके बाद के मंजर में हम देखते हैं कि जरमियान कबीले के सरदार अपनी बेटी और सिपाहियों के साथ एक मुकाम पर मौजूद होते हैं। इसी लम्हे छुपा हुआ एक शख्स जरमियान कबीले के सरदार की जानिब तीर छोड़ देता है, मगर उनकी बेटी एकदम से उन्हें धकेल कर बचा लेती है और तीर करीब खड़े शख्स को जा लगता है। उधर उस्मान साहब कहते हैं, तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए अब जंग शुरू हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीले में उरहान एक तुर्क सिपाही के साथ जंगी मशकें कर रहा होता है, मगर मशक के दौरान हम देखते हैं उरहान काफी गुस्से में होता है। उधर जरमियान कबीले का खास सिपाही सरदार को बताते हुए कहता है, इस तीर पर कायों का निशान है। ये सुनकर कबीले का सरदार हैरानो परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काय कबीले के सरदारी हैमे के बाहर तमाम लोग जमा होते हैं। दूसरी जानिब जरमियान कबीले के सरदार अपने सिपाहियों के साथ जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, तुर्कों का सुल्तान एनातोलिया के सरदारों में से कोई एक होगा। इस पर दूसरा सरदार पूछता है, कौन क़यादत संभालेगा? ये सुनकर जरमियान कबीले का सरदार कहता है, क़यादत मैं संभालने की दरख्वास्त करता हूँ। इसके साथ साथ वो सरदार अपने हमायत
یافتہ سردار اور سپاہی بھی اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ رسیوں کی مدد سے درختوں سے نیچے کود پڑتے ہیں اور ارحان کہہ رہا ہوتا ہے کایوں کے سردار عثمان صاحب اپنے پیچھے آپ کو غازی بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ جواب میں وحشی لوگ زور زور سے کہکے لگاتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے میں عثمان صاحب اپنے جنبازوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں؟ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں تیار ہیں حضور، تیار ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وحشیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس لڑائی میں ارحان کا بازو بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ ادھر جرمیان قبیلے کا سردار ایک مقام پر سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس کی آواز گونجتی ہے آنے والے تمام سردار میرا ہاتھ چومیں گے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ ادھر ملعون خاتون عثمان صاحب کو چوگا پہنا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اس ڈرامے میں ایک تاریخی کردار یعنی یونس ایمرے کو دیکھیں گے جن کا کردار یقیناً اس سیزن میں کافی زیادہ اہم ہونے والا ہے اور وہ عثمان صاحب کی رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یونس ایمرے پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں شہرت ایک آفت ہے، قسم سے یہ ایک آفت ہے۔ اس کے بعد کے منظر ہم دیکھتے ہیں ایک شدید جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جنگ کائیوں اور بازنطینیوں کے درمیان لڑی جائے گی۔ اس جنگ میں عثمان صاحب بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں۔ ٹریلر کے آخری منظر میں عثمان صاحب اپنے جانبازوں کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہتے ہیں اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔